हाँ जी, पंजाब जीके ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ which was the longest duration of president rule in ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ longest duration of president rule ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ 4 ਸਾਲ 208 ਦਿਨ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਦਿਨ ਇੰਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਸ ਵਾਸ ਦਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਫਰਵਰੀ 1992 ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਿਚੁਏਟਡ ਐਟ ਵਿਚ ਪਲੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਚਿਮਨੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਵੇਚ ਵਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ, ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। Which of the following battle was fought before the creation of ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਦੋਂ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 1699, that means ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1699। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ 30 ਮਾਰਚ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੇਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਆਈਡੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1752 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 12-13 ਦਿਨ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵਿਸਾਖੀ ਹੁਣ 13 ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ 1699। ਤੇ 1699 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਸੋ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਬੈਟਲ ਆਫ ਭੰਗਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹ ਬੈਟਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 16 ਸਤੰਬਰ 1686 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। 16 ਸਤੰਬਰ 1686 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਟਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। 16 ਸਤੰਬਰ 1686 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਬੁਲਾਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੈਟਲ ਭੰਗਾਣੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੜੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, after partition in 1947 ਪੰਜਾਬ was left with a total of how many districts? ਜਦੋਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਦੈਟ ਵਰ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਚੇ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਚੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰੋਪੜ। ਤੋਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡ ਹੋਈ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੀ। ਬੈਟਲ ਫॉर ਮੁਲਤਾਨ in 1849 was fought between British। ਜਦੋਂ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਕੌਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵਾਬ ਕੌਣ ਸੀ?
ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਨਵਾਬ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਦੀਵਾਨ ਮੂਲ ਰਾਜ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਰਸੀਦੀ ਟਿਕਟ ਇਜ਼ ਦ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆਫ ਵਿਚ ਰਾਈਟਰ? ਰਸੀਦੀ ਟਿਕਟ ਕਿਹਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ, ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਘੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨਪੀਠ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਰਸੀਦੀ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਹਿਤਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨਪੀਠ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੰਗੂਵਾਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਇਜ਼? ਗੰਗੂਵਾਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋ ਹੈ ਕਿ ਪੈਡੀ ਸਟਬਲ ਬੇਸਡ ਹੈ ਕਿ ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਟਬਲ ਬੇਸਡ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ? ਇਹ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੇਮ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਦ ਦ ਹਾਈਐਸਟ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ? ਹਾਈਐਸਟ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ? ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ, ਔਰ ਮਿਨੀਮਮ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਹੈ। Which are the following represent 5 to 8 gurus in the chronological order? ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਛੇਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਸੱਤਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਅੱਠਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਨੌਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ, ਔਰ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, that is हाँ जी गुरु अर्जन देव जी, गुरु हरगोबिंद जी, हरराय जी, हरकृष्ण जी। मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना वाज लॉन्च्ड इन 2019। सो इन्हां दे विचों किहड़ी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ठीक नहीं है? सो इहदे विच जिहड़ी स्टेटमेंट ठीक नहीं है दैट इज आपां कहंदे कि एक जगह लिखिया हुंदा कि इहदे वास्ते स्मार्ट राशन कार्ड नहीं चाहिए। सो इहदे वास्ते तुहानूं किते ना किते स्मार्ट राशन कार्ड चाहिए। सो ये स्टेटमेंट जिहड़ी सीगी इह ठीक नहीं है। Which of the following set of princely states are termed as फुल्कियां states? फुल्कियां states ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ states ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਫੁਲਕੀਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਫੂਲ ਤੋਂ ਫੁਲਕੀਆਂ ਸਟੇਟ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ ਤੇ ਜੀਂਦ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਫੁਲਕੀਆਂ ਸਟੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। तख्त दमदमा साहिब इज लोकेटेड इन विच आर द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब? दमदमा साहिब गुरुद्वारा ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤਖਤ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਪੈਂਦਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਚ ਪੈਂਦਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਚ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਚ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ? ਬਠਿੰਡਾ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। After independence, India won first gold medal in hockey in 1948. Who was the captain of the hockey team? ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ 47 ਚ ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, 48 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 올림픽 ਗੇਮਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਫਾਈਨਲ ਵਾਸ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਾਈ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਚੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਮੈਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਉਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚੀਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸੀਗੇ ਇਟ ਵਾਸ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6 ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।
which of the following soil type is not normally found in ਪੰਜਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਲਾਈਨ ਸੋਇਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਸਲਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਲਾਕਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਲਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਬੇਟ ਸੋਇਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੀਰੋਜ਼ੈਮ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਇਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਲੋਮੀ ਸੋਇਲ ਤੇ ਰੇਤੀ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈਗੀ ਤੇ 25% ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੀਰੋਜ਼ਨ ਸੋਇਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਟਰਾਈਟ ਸੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਜਾਊ ਮਿਨਰਲ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੈਟਰਾਈਟ ਸੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ is situated in Punjab at, is situated in Punjab at ਨਾਈਪਰ। ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਈਪਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈ? ਇਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੋਹਾਲੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। Who won the first individual gold medal in Olympics for India? ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੋ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੋਈ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਇਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਬਜਟ 2022 what is the, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 22-23 ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2022 ਐਂਡਿੰਗ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਡ ਬਜਟ ਫॉर 2022-23। what is the projection of revenue deficit? ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 2022-23 ਦਾ? ਉਹ 1.99% ਹੈ। 1.99% ਆਫ GDP ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਆਫ GDP ਆਫ ਪੰਜਾਬ। Central government has discontinued GST composition scheme, not composition, compensation scheme, compensation scheme for Punjab and other states from which date? ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ GST ਦੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 1 ਜੁਲਾਈ 2022। ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ GST ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 14% ਗਰੋਥ ਹੋਏਗੀ। 14% ਗਰੋਥ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 14% ਵੱਧਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਘਾਟਾ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। What do the beneficiaries get free of cost under My Bhago Vidya scheme? ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। So that is the advantage of this particular scheme. हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल बैक टू द ज्ञानम। और हम लोग अपनी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। आपके जो पंजाब के मॉक टेस्ट चल रहे हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं आज के कुछ टेस्ट में क्वेश्चंस क्या रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट और यूटी सेलिब्रेट लॉसर एज इट्स न्यू ईयर फेस्टिवल? वो कहता है लॉसर जो कि एक न्यू ईयर फेस्टिवल है, ये कहां पर मनाया जाता है भारत के अंदर? ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास क्या है? लद्दाख। एक्चुअल में ये तिब्बतियन फेस्टिवल है, क्लास आपको याद रखना है, ये खाली भारत में नहीं मनाया जाता। जब तिब्बत के लोगों ने माइग्रेशन किया, इन्वेड किया नेपाल और आसपास के पहाड़ी इलाकों को, जैसे आज हम हिमालय के तौर पर जानते हैं, तो वहां पर इन्होंने इस फेस्टिवल की शुरुआत की थी। ठीक है, तो लॉसर जो आपका फेस्टिवल है ये कहां पर मनाया जाता है? भारत के अंदर लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है, नेपाल में बनाया जाता है, तिब्बत में भी बनाया जाता है, काफी जगहों पर इसका सेलिब्रेशन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियाज फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम डिस्प्लेइंग ऑल टाइप्स ऑफ रॉक गैदर फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स।
भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो पत्थर हैं, ठीक है। अब सब जगह एक जगह तो देख हम नहीं घूम सकते, तो पूरे भारत भ्रमण पर आपको जैसे भी पत्थर दिखाई देते हैं उसको जगह इकट्ठा करके एक म्यूजियम तैयार किया गया है, और ये जगह आपके पास कौन सी है? हैदराबाद। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको किसी पेपर में टकर सकता है क्लास, क्योंकि पहली बार आपको ये चीज देखने को मिल रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस जो कि जनवरी 9 को बनाया जाता है, ये किसकी भारत वापसी पर है? तो जब जाहिर बात है महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को ये सत्याग्रह साउथ अफ्रीका का खत्म करके भारत आते हैं, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, ठीक है। आने वाले साल 2023 में ये प्रवासी दिवस इंदौर में मनाया जाएगा क्लास, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच सिटी इन केरला बिकेम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू हैव अ वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट? ठीक है, देखो अब जब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट्स की, डेवलपमेंट की, तो पानी के संसाधनों का इस्तेमाल अब बहुत ज्यादा किया जाने लगा है, ठीक है। तो फर्स्ट सीरीज ऑफ द बैटरी पावर्ड फुली एसी इलेक्ट्रिक बोट्स, अब पहली भारत की जो प्रॉपरली आपके पास एसी भी हैं और इलेक्ट्रिकल बोट्स हैं, वो कहां पर चलाई गई है? कोची के अंदर चलाई गई है। ये टूरिज्म को भी प्रमोट करेगा और आपके इको फ्रेंडली भी रहेगा, पर्यावरण में प्रदूषण भी नहीं करेगा। तो इंपॉर्टेंट है क्लास, स्टेट बेस्ड क्वेश्चंस आजकल एग्जाम्स में दिखते हैं। रिसेंटली जो हेनले पासपोर्ट की जो रेटिंग्स आई थी फर्स्ट क्वार्टर, पहले 4 साल की भारत की बात कर रहा है 2022 के अंदर, तो भारत का रैंक पूछ रहा है वो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण पासपोर्ट सर्वेइंग इंडेक्स है ये, जहां पर आपको ये पता लगता है कि आपकी कंट्री का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है, आपको कितनी कंट्रीज पे डायरेक्ट वीजा अवेलेबल है। तो भारत का रैंक 83 है। इसके रैंक से आइडिया लगाया जा सकता है कि डायरेक्टली कितनी कंट्रियों पर भारत को डायरेक्ट वीजा अवेलेबल हो जाता है, 83 कंट्रीज पर, ठीक है। चलिए जापान और सिंगापुर पहले नंबर पे, ये भी याद रखिएगा। एज पर द इंडियन स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट? भारत में अगर जंगलों का घनत्व देखा जाता है तो किस राज्य का सबसे ज्यादा आपके पास फॉरेस्ट एरिया कवर है? टोटल अगर मैं स्टेट के एरिया की बात करता हूं तो मध्य प्रदेश है। इसके टोटल एरिया को अगर मैं देखता हूं तो इसके 23% जो हिस्सा है उसमें फॉरेस्ट एरिया है, बट इन द टर्म्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर, जब हम एरिया नापते हैं तो स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से नापते हैं फॉरेस्ट का, जंगलों का, तो सबसे ज्यादा पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से जो आपके पास फॉरेस्ट बैठते हैं वो कहां बैठते हैं? मध्य प्रदेश में बैठते हैं। अगर यही क्वेश्चन परसेंटेज के टर्म में होता कि किस भारत के किस राज्य का सबसे ज्यादा परसेंटेज के टर्म में फॉरेस्ट एरिया कवर है, यानी कोई राज्य हो उसमें, जैसे ये मेरा राज्य है, ठीक है, ठीक है, दिस इज ऑल माय स्टेट, इसका कितना हिस्सा आपके पास फॉरेस्ट एरिया से कवर है? जैसे मैं कवर कर रहा हूं तो सपोज करो ये सारा का सारा फॉरेस्ट एरिया है, कुछ जगह बच गई वो लैंड है, ठीक है। तो मिजोरम भारत का ऐसा राज्य है जहां पे 90% के अराउंड आपको फॉरेस्ट एरिया कवर मिलता है, तो 10% ही हिस्सा ऐसा है जो नॉन फॉरेस्टेड है। तो आपको ये भी ध्यान रखना कि परसेंटेज के टर्म में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं क्लास। नेक्स्ट, इन द फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर ऑफ द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फ्रॉम इंडिया, Which country confirmed 374.916 मिलियन परचेज कॉन्ट्रैक्ट? देखो भारत अभी डिफेंस इंपोर्टर से एक्सपोर्टर की कैटेगरी में भी फॉल करना शुरू हो रहा है। हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने खरीदना बंद कर दिया, बट हम एक्सपोर्ट में भी आ गए। हम डिफेंस में अपना फ्यूचर ढूंढ रहे हैं, डिफेंस वेपन्स को बेचना शुरू किया है, रफाल बेच रहे हैं। तो ब्रह्मोस जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट आपके पास मिसाइल है, सुपरसोनिक है, ये फिलीपाइंस कंट्री जो हमारी है जिसकी कैपिटल राजधानी मनीला है, इसको बेचना शुरू किया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास कि तेजस की डिमांड कहां कहां हो रही है, तेजस का ऑफिस कहां खोला है? तो तेजस का हमने जो ऑफिस खोला है, सेल्स ऑफिस खोला है, वो मलेशिया में कोलालमपुर में खोला है। इजिप्ट जैसी कंट्रीज, यूएई जैसी कंट्रीज हमसे कंटिन्यूसली डिमांड कर रही है कि हमें तेजस चाहिए, बहुत लाइट वेटेड एयरक्राफ्ट है आपके पास। तो प्लीज ऐसे क्वेश्चंस का ध्यान रखिए जो डिफेंस डील आपकी हो रही है। नेक्स्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट्स इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? अब इकोनॉमी का सेक्शन है कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या है। बजट के 2 पार्ट होते हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल ना। रिसिप्ट्स मतलब पैसा आएगा कहां से, तो डायरेक्ट टैक्सेस से पैसा आता है, बिल्कुल आता है। जीएसटी बिल्कुल आता है। रेवेन्यू अर्न बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट, जो सर्विसेज हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, रेलवे की या मैं कहता हूं रोडवेज वगैरह की, तो उसका भी डायरेक्ट बेनिफिट रिसिप्ट में ही आता है, ठीक है। तो जितने भी ये सारे हैं आपके पास रेवेन्यू के रिसिप्ट्स में रहते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स का बेनिफिट ये रहता है कि ना तो ये लाइबिलिटीज क्रिएट करते हैं, ना ही एसेट्स बनाते हैं, ठीक है। लाइबिलिटी मतलब मेरी देनदारी है। अब मैंने जब टैक्स ले लिया कि मुझे टैक्स वापस करना है, आई डोंट हैव टू रिटर्न योर टैक्सेस, है ना, मैंने जीएसटी लिया, मैं वापस थोड़ी कर रहा हूं आपको। तो जो टैक्सेस मैं ले चुका हूं यानी मेरी लाइबिलिटी नहीं रही।
प्लस ये मेरे पास परमानेंट भी नहीं रहेगा, क्योंकि इसी टैक्स को मैं दोबारा से जनता की भलाई में या उसके काम में ही लगा देता हूं। ठीक है, तो रिसिप्ट्स जो आपकी रेवेन्यू की है, ना ये लाइबिलिटी क्रिएट करती है, ना ही एसेट्स क्रिएट करती है। ऑन द अदर हैंड, जब मैं कैपिटल रिसिप्ट्स की बात करता हूं तो वो लाइबिलिटीज भी क्रिएट करती हैं और एसेट्स रिड्यूस भी करती हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच मेटल इज द मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पाए जाने वाला आपका जो मेटल है वो कौन सा है? दैट इज एल्यूमिनियम। ठीक है, ये आपका आंसर मार्क नहीं है, एल्यूमिनियम इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेंसेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ की जो मेन 3 लेयर्स हैं, मेंटेल है, सबसे पहले हम क्रस्ट की बात करते हैं, देन मेंटेल है, देन कोर है। तो कोर सबसे ज्यादा आपकी डेंस है। ठीक है, दुनिया के भारत सॉरी हम लोग चीज देखते हैं कि हैवी चीजें सिंक करती हैं, है ना। तो जितने भी हमारे प्रकृति में पाए जाने वाले नेचुरल एलिमेंट्स हैं, वो सब जितने भी हैवी एलिमेंट्स वो सारे के सारे अंदर है। ठीक है, एक रिसर्च के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड कोर में ही पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, एक्चुअल में ये गौतम बुद्धा के लिए इस्तेमाल किया गया, हिस्ट्री से क्वेश्चन है, और ये एक बायोग्राफिकल एविडेंसेस हैं आपके पास जो महात्मा बुद्ध के बारे में लिखा गया था। किताब का नाम भी है द लाइट ऑफ एशिया। सर एडविन आर्नोल्ड ने इस किताब को लिखा है। क्लास आपको ये याद रखना है, कई बार ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, सर एडविन आर्नोल्ड। ठीक है, तो बुद्ध चरित्र पर बेस्ड है ये बुक, जो कि आपके अश्वघोष ने लिखी थी। उसी किताब का इंग्लिश वर्जन है ये आपके पास, द लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग रोट एट द ऑन द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ द आर्यंस। ठीक है, किताब है जो कि ओरिजिनल होमलैंड ऑफ आर्यंस की बात कर रही है, तो बाल गंगाधर तिलक ने इस किताब को लिखा था, द एशियाटिक होम्स ऑफ द आर्यंस। ये कंट्रोवर्सी है यार कि आर्यंस आए कहां से, है ना। बहुत डिफरेंट डिफरेंट इसके वर्जन है, मैक्स मिलर का अपना है, बाल गंगाधर तिलक है, देयर आर मेनी पीपल इन द वेस्ट और ईस्ट जो इस कॉन्फ्लिक्ट में लगे रहते हैं। आज भी इस बारे में चर्चा होती है कि आर्यंस का क्या हिसाब किताब है। तो प्लीज जो बुक्स इससे रिलेटेड है उनका ध्यान रखिए, जहां जहां पे इसके एविडेंसेस के बारे में बात की गई है उसका भी ध्यान रखिए। जैसे क्वेश्चन बड़े पहले आया था आपके जो सेंट्रल एओ का पेपर होता है आपका, ठीक है, एसीआईओ का पेपर होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो का, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि किस किताब में इस बात का मेंशन है कि आर्यंस ईरान से होते हुए भारत आए थे। ठीक है, तो ज़ैन अवेस्टा इज द नेम ऑफ द बुक। ठीक है, ज़ोरास्ट्रियन कल्चर की एक बुक है आपके पास, रिलीजन की बुक है ज़ैन अवेस्टा, उसमें मेंशन था। तो देखो बहुत माइन्यूट सा एक पॉइंट उठा के क्वेश्चन बनाया गया, तो प्लीज इन चीजों को निग्लेक्ट मत किया कीजिए, ध्यान रखा कीजिए। विच ऑफ द इवेंट्स ऑफ द बुद्धास लाइफ इज नोन एज महाबनिष्कर्मन। महाबनिष्कर्मन का मतलब है द ग्रेट वेंडरनेस। जब आप किसी उद्देश्य के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर घूम रहे हो, तो जब इन्होंने अपना घर छोड़ा था तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये इधर उधर घूम रहे हैं। ठीक है, इनके डेथ को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्लास ये भी याद रखिएगा, महापरिनिर्वाण। ठीक है, एनलाइटनमेंट को नाम क्या दिया जाता है? निर्वाण। ठीक है, और पहला जो उपदेश है उसको नाम दिया जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप याद रखिए, आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बर्थ का इनका सिंबल याद रखिएगा, एलिफेंट इज द सिंबल ऑफ बुद्धास बर्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया वाज द बंगाल गैजेट। ठीक है, जेम्स हिकी इसके एडिटर थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, बहुत स्टार्टिंग में तो इसको ब्रिटिशर्स की प्रेजिंग के लिए ही रखा गया था, लेकिन बाद में ये भी क्रिटिकल हो गए थे ब्रिटिश सरकार के प्रति, तो ये न्यूज़पेपर बंद कर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ राज्यसभा। तो 6 साल का कार्यकाल है, 1952 के अंदर इसका निर्माण किया गया था, और उस समय पर इसको डिक्लेयर किया गया था कि हर 2 साल में 1/3 लोग इसके रिटायर होते हैं। परमानेंट हाउस है, कंटिन्यूएशन में लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं। ठीक है, तो 6 इयर्स का टेन्योर है, आप जब भी सिलेक्ट होंगे। ठीक है, चलिए, द फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड अंडर एन ऑर्डर इशूड बाय। अब देखो क्वेश्चन अच्छा है कि फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करने की पावर किसके पास है? तो किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, तो ध्यान रखना क्लास, फंडामेंटल राइट्स को लेकर स्टेट के पास कोई पावर्स नहीं होती है, ये पावर्स हमेशा किसके पास रहती है? सेंटर के पास रहती है। ठीक है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेसिडेंट रूल प्रोमलगेट इन द एनी स्टेट ऑफ द इंडिया। भारत में किसी भी जगह पर स्टेट इमरजेंसी या राष्ट्रपति शासन जो लगाना होता है वो किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? 356। इसे संविधान में डेड आर्टिकल का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि इसका कभी संवैधानिक तौर पर सही उपयोग नहीं हुआ है। ठीक है,
बहुत बार इसका ज्यादातर दुरुपयोग ही इसका किया गया। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज अ चेक विच कैन बी पेड ऑन बैंक्स कन्वीनियंस। ये स्टेटमेंट किसने दी थी? मिस्टर के.टी. शाह। ठीक है, संविधान जब बन रहा था तो जो चीजें लिखी गई बनाई गई उनको उसके ऊपर लोगों के व्यंग त्यंग और प्रसंग दिए गए थे, तो उसमें से के.टी. शाह ने कहा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो कि तभी काम करेगा जब बैंक की कन्वीनियंस होगी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को जब लग रहा होगा कि इन पॉलिसीज को उठाकर उनको कुछ बेनिफिट हो रहा है तभी वो उसके ऊपर काम करेंगे, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट का मतलब था। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। देखो हम लोग ये पढ़ते हैं कि 7th शेड्यूल के अंदर जो डिवीजन ऑफ पावर्स है उसमें स्टेट लिस्ट पे काम सिर्फ स्टेट कर सकती है। ठीक है, बट ये स्टेटमेंट पूरी तरह ट्रू नहीं है क्लास। सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसके ऊपर काम कर सकती है थ्रू राज्यसभा। हम राज्यसभा को बोलते क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्य मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट्स हो जाएगा, यानी स्टेट के लिए पार्लियामेंट कानून तैयार कर सकती है। आपको यही याद रखना है। कई बार खुद स्टेट्स भी कह देते हैं कि हमारे लिए कानून तैयार करो, 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स मिलकर कह सकती हैं। कई बार जब उनको लगता है कि जरूरत है, कभी कभी इमरजेंसी के टाइम पर भी ये काम किया जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना 249 के तहत आप स्टेट लिस्ट से कोई कानून यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। तो आर्टिकल 20 और 21 ये आपके कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं। 44th अमेंडमेंट है 1978 का, जिसके तहत आपके 21 और 20 आर्टिकल को कभी सस्पेंड नहीं किया जाएगा। ये तब है जब आपके पास वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन की सिचुएशन है। अगर देश में आर्म्ड रिबेलियन है, यानी पहले इसके लिए हम शब्द इंटरनल डिस्टर्बेंस इस्तेमाल करते थे, उस समय पर आप आर्टिकल 19 को भी सस्पेंड नहीं करोगे। आपको याद रखना है 3 आर्टिकल तब सस्पेंड नहीं होते, यहां पर 2 आर्टिकल की बात हो रही है। ठीक है, विच स्टेट टॉप द फर्स्ट एडिशन ऑफ स्टेट रैंकिंग इंडेक्स ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो उड़ीसा ने इसके अंदर सबसे बेहतरीन काम किया है फूड सिक्योरिटी को लेकर। जनसंधारण तक फूड को सेव करके रखा है और वहां तक उसको पहुंचाया भी है, कम से कम अनाज खराब किया है। पीवी संधू इन्होंने रिसेंटली विमेन सिंगल टाइटल जीता है सिंगापुर ओपन के अंदर जुलाई 16 के अंदर। ठीक है, Who among the following were the first native Indian ruler to issue their own coins? तो भारत के लोग जिन्होंने अपने कॉइन्स खुद इशू किए थे, दैट वाज सत्यवांश। ठीक है, ये मॉरियंस के एंसेस्टर्स हैं दक्कन की तरफ। Which of the following modern regions were included in the empire of चंद्रगुप्त प्रथम? तो चंद्रगुप्त प्रथम जो कि आपके गुप्त साम्राज्य से बिलोंग करते हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन कौन से हिस्से हैं जो कि इसमें थे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो बिहार, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा है, पूरा नहीं है, बाद में कवर कर लिया गया था। तो बंगाल, तो 1, 2, 3 सारे के सारे हिस्से, बंगाल और बिहार का तो हिस्सा मगध में उस समय वैसे भी शामिल था। विच ऑफ द मोस्ट आइडियल रीजन ऑफ द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन इन इंडिया? ठीक है, तो डेक्कन प्लेटो। कॉटन को चाहिए होती है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल बनती है आपकी वॉल्केनिक इरप्शंस के बाद। तो ऐसा माना जाता है कि बहुत समय पहले जब इंडिया माइग्रेट कर रहा है आपका टुवर्ड्स द यूरेशिया, तो कुछ समय के लिए वो एक जियोथर्मल हॉटस्पॉट्स के ऊपर था जहां पर आज भी वॉल्केनिक इरप्शंस होती रहती है। तो उस समय पर जब भारत उसके ऊपर आता है, कुछ समय रहता है, तो दक्कन के पठार पर आपको वॉल्केनिक इरप्शंस दिखाई देती है। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज इज एशियाज लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी? सबसे बड़ी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी आपके एशिया की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। ठीक है, वैसे ये बनारस हिंदू कॉलेज था जो कि 1751 के अंदर जोनाथन डेकन ने बनाया था। इसे बीएचयू का दर्जा देने में मदन मोहन मालवीय जी का बहुत बड़ा रोल था। कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने अपनी पहली पब्लिक स्पीच भारत में कब दी थी? इट वाज इन 1916 ऑन द इनॉग्रेशन ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। महात्मा गांधी जी वहां चीफ गेस्ट थे। तो आपको ये भी कई बार क्वेश्चंस आसपास होते हैं, ध्यान रखा कीजिए। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट इन द स्टेट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन? प्रेजेंटली 61 है क्लास, ओरिजिनली 66 थे। एजुकेशन, फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड बर्ड सेंचुरीज की प्रोटेक्शन जो होती है आपके पास, वेट एंड मेजरमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये अब आपके पास कॉन्करेंट में जा चुके हैं। ये 5 मुद्दे तो मैं कह रहा हूं कि पहले 66 61 है, तो जो 5 मुद्दे आपके कॉन्करेंट में जा चुके हैं वो ये है बस। ठीक है, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान रखिएगा। एजुकेशन है, फॉरेस्ट्री है, वेट्स एंड मेजरमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरीज। ठीक है, चलिए 15th सेशन जो कि कॉन्फ्रेंस आपके ऑफ पार्टीज का हुआ है, सिकॉप 15 हुआ है यूएनसीसीडी का, दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ कॉम्पैक्ट डेजर्टिफिकेशन। ये कहां पर हुआ है? मई 9 से 20 के बीच में अधिबजान। ठीक है, जहां पर ये हुआ है। डेजर्टिफिकेशन का जो इश्यू है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, मतलब जगहें बंजर होती जा रही है। ठीक है, मिट्टी बुरबुरी होती जा रही है और बाद में वो रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे अफ्रीका में एक बहुत बड़ा इशू है कि सहारा डेजर्ट एक्सपैंड कर रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए तरीके ढूंढे जा रहे हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फ्री इंडियाज फर्स्ट बिग फाइनेंशियल स्कैम? तो मुडेरा स्कैम था आपके
कलकत्ता का, ठीक है, हरीश मुंडेरा। एलआईसी को लेकर इसमें इश्यूज थे, 125 करोड़ के आसपास तो उस समय के स्कैम था। फिरोज शाह मेहता जो कि उस समय तत्कालीन जो भारत के प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू उनके दामाद भी थे, तो ही वाज द फर्स्ट वन टू एक्सपोज दिस, ठीक है। चलिए, फॉर फ्रॉम विच कंट्री इंडिया अडॉप्टेड द इन्फ्लेशन टारगेटिंग अप्रोच, तो न्यूजीलैंड वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने इन्फ्लेशन टारगेटिंग अप्रोच, यानी कि सेंट्रल बैंक को अथॉरिटी देगी, आपके पास पावर होनी चाहिए कि आप देश में महंगाई को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। आज भारत में आरबीआई एमपीसी दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, रिसेंटली आपके 35 पॉइंट्स बेसिक से आपका रेपो रेट बढ़ाया गया, ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का ही तरीका है, ठीक है। सो दिस इज ऑल वी हैव फ्रॉम दिस सेक्शन, बाकी सेक्शंस के लिए जुड़े रहिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हर हफ्ते ज्ञानम आपके लिए एक मॉक टेस्ट लाता है, जिसमें कि हम लोग हर बार यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके पास आए थे और उनको टैकल आप लोगों ने कैसे करना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, आज का जो आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, विच इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर MS Word 2007। अब यहाँ पे बात करते हैं कि एक वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है 2007, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है MS Word 2007, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ, दो चीज़ें हैं आपको यहाँ पे पहले समझनी पड़ेंगी। एक होता है 2003 डिफ़ॉल्ट 2003, तो आप लोगों को यहाँ पे आंसर करना है .doc और अगर यहाँ पे आ जाए 2007 और ऑनवर्ड, तो आप लोगों को यहाँ पे आंसर करना है .docx। तो इस बात का मतलब है कि इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा .docx। तो डॉक्यूमेंट आपके पास एक्सटेंशन पूछा था वर्ड की, तो वर्ड का मीनिंग अपने आप में था बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर बनेगा। .docx आपके पास इसका आंसर होगा। अगर 2003 वर्ड 2007 वर्ड ना हो, 3 हो या कुछ ना लिखा हो, तो आप लोग इसको यहाँ पे आंसर करेंगे। तो होपफुली ये भी बात आपको क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट रेड अंडरलाइन इंडिकेट। जब भी आप लोग MS वर्ड में कोई भी काम करते हैं तो कई बार आपने देखा होगा किसी फाइल में रेड जो है वो आपके पास हो जाती है कोई भी लाइन, तो उसका मतलब आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पहले आपके पास क्या लिखा है, पॉसिबल स्पेलिंग एरर और वर्ड डजंट रिकॉग्नाइज्ड अ वर्ड। हाँ, तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि अगर या तो आप लोगों ने स्पेलिंग गलत लिखी है तो वो रेड दिखाएगा, या किसी का नाम वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। जैसे आप रेड, येलो, ब्लू लिख देंगे या राम श्याम, तो रेड को तो वो पहचान लेगा क्योंकि एक स्पेलिंग है। राम श्याम लिख देंगे तो राम जो है किसी पर्सन का नाम है, वो आइडेंटिफाई नहीं करेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर बनेगा कि स्पेलिंग एरर होने के पूरे हैं या होगा, या फिर वो क्या होगा, ऐसा वर्ड जिसको कोई वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। तो होपफुली भी बात आपको क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है, व्हाट इज इंटरनेट। अब इंटरनेट की अगर मैं बात करता हूं तो इंटरनेट क्या है, आपको भी पता है कि एक वाइड एरिया कलेक्शन है जिसके थ्रू पूरा का पूरा ग्लोब एक दूसरे के साथ क्या यहाँ पे कनेक्टेड है। अगर मैं बात करता हूँ सिंगल नेटवर्क तो नहीं है, ये तो पहले ही कैंसिल हो गया। अगला है वास्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क, हाँ बिल्कुल सही आंसर तो ये बन जाएगा। अगला इंटरकनेक्शन ऑफ लोकल और मेट्रोपॉलिटन, ना ये क्या है, पूरे के पूरे संसार को जोड़ने की एबिलिटी रखता है। तो आंसर क्या बनेगा आपके पास, बी ऑप्शन, क्योंकि वास्ट नेटवर्क है। तो होपफुली बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, विच नेटवर्क सिक्योरिटी फीचर प्रिवेंट यूजर ऑन अ नेटवर्क फ्रॉम यूजिंग प्रोग्राम एंड इंफॉर्मेशन दैट आर अनऑथराइज्ड। इनमें से ये पूछा गया है कि आपके कंप्यूटर में ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि रोकता है कि आपके सिस्टम के ऊपर कोई इलीगली या अनऑथराइज तरीके से एक्सेस ना कर पाए। फायरवॉल, एंटीवायरस, जैमर या प्लॉटर। तो प्लॉटर तो एक आउटपुट डिवाइस है, ये तो पहले ही कैंसिल होगा। अगर जैमर की अगर मैं बात करूं, जैमर क्या होता है कि आसपास के सिग्नल को ही पूरे के पूरे एरिया को बंद कर देता है, तो रोकेगा तो नहीं। एंटीवायरस तो वायरस को आने से रोकता है, तो देखिए आपने ऑप्शन से यहाँ पे काट लिया कि आंसर नहीं बनेंगे। अब फायरवॉल डिफॉल्ट एक फीचर आता है जो कि अनप्रोटेक्टेड, जो कि अनऑथराइज यूजर को आपके पास क्या करता है, रोकता है। तो आंसर इज ए ऑप्शन। होपफुली बात क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यूपीएस। यूपीएस क्या होता है आपको पता है, अनट्रिप्टेबल पावर सप्लाई, तो आपके पास बी ऑप्शन अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है अ डैश इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज्ड टू व्यू अ वेब पेजेस। तो वेब पेजेस किसके थ्रू देखते हैं? साइट तो अपने आप में पेजेस की कलेक्शन होती है, होस्ट या लिंक के थ्रू देखा जा सकता है, पर देखने का काम जो होता है वो किसका होता है? ब्राउजर का। ब्राउजर के थ्रू आप लोग किसी भी सॉफ्टवेयर या उस पर्टिकुलर जगह के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। पावर पॉइंट प्रोवाइड अ नंबर ऑफ लेआउट फॉर यूज विद ब्लैंक प्रेजेंटेशन। तो आपके पास कितने यहाँ पे प्रेजेंटेशन के जो है आपको मिलते हैं, व्यू मिलते हैं, लेआउट मिलते हैं। तो इन लेआउट की अगर मैं बात करता हूँ तो वो है 24 लेआउट जो है आपको मिलते हैं। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है, तो ये याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स कंप्यूटर हार्डवेयर एंड इंटरेक्ट विद यूजर इज। मतलब आप जब भी कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो पूरे के पूरे कंप्यूटर को इंटरेक्ट करता है, मतलब जोड़ने का काम करता है? तो पहला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड तो कभी आंसर नहीं बनेगा, इसके ऊपर तो काम करते हैं, ये तो मैनेजमेंट का काम है, ये भी आंसर नहीं होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी नहीं होगा, आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन, क्योंकि विंडोज के थ्रू ही आप लोग सारी की सारी कनेक्टिविटी करवाते हैं। अगर विंडो ना हो तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो होपफुली ये भी बात आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। इन मोस्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम व्हाट डज Alt F4 डू? Alt F4 जो है वो क्या काम करता है? Alt F4 दबाने से आपके पास क्या होता है? एंड द ऑपरेशन या ओपन द प्रोग्राम, रन द प्रोग्राम या मॉडिफाई द प्रोग्राम। तो मॉडिफाई नहीं होगा, रन भी नहीं होगा, ओपन भी नहीं होगा, इसका आंसर आएगा एंड द प्रोग्राम। यहाँ पे क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है, एंड कर दिया जाता है किसी भी प्रोग्राम को। तो होपफुली बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, बट डज BCC मीन्स इन ईमेल। ईमेल में BCC का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? सबसे पहले है ब्लैक कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, या फिर बिजनेस कंप्यूटर सेंटर या बिजनेस कंप्यूटर कार्ड। आपको मालूम है कि ये तो आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका आंसर आएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसका आंसर जो है बनेगा। ठीक है, तो होपफुली यहाँ तक सारी की सारी बातें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुई होंगी। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि पता है आप लोगों को कि ज्ञानम हर हफ्ते आपके लिए एक मॉक टेस्ट लाता है, तो मैं आशीष आज आपके पास रीजनिंग के सॉल्यूशन जो है लेके आया हूं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे क्या दे रखा है। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपके पास यहाँ पे क्या है? सीरीज का, ये अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ RLP, आगे क्या आपके पास है NUA, देन आगे है JDL, आगे है FMW। आपके पास यहाँ पे ये इसका नेक्स्ट बताना है। तो ये आपके पास इसकी वैल्यू होती है 18, इसकी वैल्यू होती है 14, आगे है आपके पास 10 और आगे है 6। तो अगर मैं बात करता हूँ 18 से 14 के बीच में आपके पास जो है -4 हुआ है, आपके पास यहाँ पे भी -4 हुआ है। फर्स्ट को अभी हमने लिया है -4 हुआ है। तो आगे भी बेटा -4 आप लोग करते हैं तो कितना आता है आपके पास? 2। तो 2 पे जो वैल्यू आती है वो आती है B। ठीक है जी। अब आगे आपके पास है यहाँ पे 12 और आपके पास 8, 21 और 4 और यहाँ पे 13। तो अगर मैं देखता हूँ 12 + 8 होता है 20 और 1 21 है। तो आपके पास यहाँ पे टोटल बीच में अल्फाबेट है 8, यहाँ पे भी कितने हैं 8 और बीच में यहाँ पे भी कितने हैं 9 + 4 13 होता है। तो बीच में जो है आपके पास 8 हैं।
तो यहाँ पे भी बीच में आप लोगों को 8 ही ऐड करने पड़ेंगे बेटा। तो अगर यहाँ पे तुम 8 ऐड करते हो तो 13 प्लस 8 आपके पास 21, आपके पास 13 प्लस 7 20 21 है। तो अगला अल्फाबेट आएगा वी। तो वी बी आपके पास यहाँ पे ये भी ऑप्शन कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है। इन दोनों में से एक आंसर बनेगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। आखिरी अल्फाबेट देखो 16 है और आपके पास 1 है और 12 है और आपके पास 23 है। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, इसको आप यहाँ पे देख लो, पी ए आपके पास एंड आखिरी है यहाँ पे एल और आगे है आपके पास यहाँ पे डब्ल्यू। तो एक चीज देखो बेटा, यहाँ पे है 12, यहाँ पे है 23, 1 और यहाँ पे 16 है ना बेटा। तो एक चीज जरा यहाँ पे देखें, तो सबसे पहले 12 और 23 के बीच में जो है आपके पास कितने का गैप है, 11 का। यहाँ पे भी 11 का और यहाँ पे आपके पास वही सेम गैप आ रहा है। तो सीरीज जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो आगे फिर से 11 ऐड करने पड़ेंगे आप लोगों को। तो 23 के बाद क्योंकि टोटल अल्फाबेट 26 तक होता है, तो आपके पास 8 यहाँ पे बन जाएगा। तो आंसर इज एच। ठीक है, होपफुली बात क्लियर है। मैं आपको करके दिखा दूं। अब यहाँ पे ना बेटा आपने 11 का डिफरेंस देखा, यहाँ पे भी 11 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 11 का डिफरेंस है, क्योंकि टोटल अल्फाबेट 26 तक होते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पे भी 11 का डिफरेंस आएगा, तो 8 यहाँ पे नंबर आएगा जो कि बनेगा एच। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा आपके पास सी ऑप्शन। ठीक है, इतना नियर आपके पास आंसर यहाँ पे था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है, अल्फाबेट सीरीज सा ही ये क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, इफ द सेकंड हाफ ऑफ द गिवन अल्फाबेट इज रिवर्स ऑर्डर। फर्स्ट को अलग से रिवर्स लिखा, सेकंड को अलग से रिवर्स लिखा। अब आगे इसने कहा, क्या कहा है, रिवर्स देन विच लेटर विल बी द सेवंथ टू द राइट, सेवंथ टू द राइट ऑफ द 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, 12th फ्रॉम द लेफ्ट। तो जब भी आपके पास बेटा ये बात आती है, एक आर है एक एल है, तो दोनों के बीच में ऑपरेटर जो आएगा वो आएगा प्लस। तो आर और एल के बीच में ऑपरेटर आ गया प्लस, तो इन दोनों को अगर तुमने ऐड किया बेटा तो आपके पास क्या बन गया, यहाँ पे 12 प्लस 7 आपके पास 19 क्या बेटा एल जो आखिरी में यहाँ पे होता है। अब आपको मालूम है कि सेकंड हाफ की बात हुई है बेटा, सेकंड हाफ में जब भी वैल्यू होती है तो उसे 40 में से माइनस किया जाता है, तो कितना आ जाएगा 21 एल, और 21 एल पे बेटा अल्फाबेट आता है यू। आंसर इज सी ऑप्शन बेटा, यू आपके पास यहाँ पे आंसर बनेगा। ठीक है, होपफुली बात आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट अगर बात करता हूं, अगला क्वेश्चन है आपके पास, अगला क्वेश्चन जो है वो है 80, 16, फिर है आपके पास यहाँ पे 4, फिर है यहाँ पे 4/3, ठीक है, फिर है आपके पास यहाँ पे 2/3। अब बेटा आप लोग जैसे मर्जी इस चीज को देख सकते हैं, स्टार्टिंग से भी देख सकते हैं, लास्ट से भी देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 2/3 फिल कर दूं तो क्या होगा, यहाँ से अगर यहाँ गए हैं तो मल्टीप्लाई हुआ है 1, यहाँ से अगर यहाँ गए हैं तो मल्टीप्लाई हुआ है 2, यहाँ से अगर यहाँ गए हैं तो मल्टीप्लाई हुआ है 3, यहाँ से अगर यहाँ गए हैं तो मल्टीप्लाई हुआ है 4, और यहाँ से अगर यहाँ गए हैं तो मल्टीप्लाई हुआ है 5। तो आंसर इज 2/3 आपके पास जो है आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। इस तरीके का लॉजिक यहाँ पे लगाया गया था। तो होपफुली बात आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, ए बी डैश सी बी ए डैश बी सी सी डैश डबल ए बी सी सी बी डैश ए बी सी डैश बी ए। चलिए बेटा ये है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, तो अक्सर मैंने आपको कहा कि इसे काउंटिंग करके आप पेयरिंग बनाते हैं। तो हम पेयरिंग जो है पहले 3 की ट्राई करते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, आपके पास 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और लास्ट में 1 2 3। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ए बी है। ठीक है, तो इसको अगर मैं देखूँ तो ए बी सी ये आपके पास बन रहा है, सी अगर फिल कर दे और यहाँ पे ए, फिर आपके पास ए बी सी, देखो यहाँ से यहाँ पे ये बन गया, फिर आपके पास यहाँ पे ए बी सी, फिर से आपके पास यहाँ पे ऑल्टरनेट में बन रहा है। अब सी बी ए, तो सी बी ए इस तरीके से यहाँ पे ऑल्टरनेट पे आ गया, फिर आ गया आपके पास सी बी ए, यहाँ पे भी आ गया, फिर आपके पास यहाँ पे एक छोड़ के सी बी ए, तो ये आपके पास बन गया। अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ से आ गया सी, यहाँ से क्या आ गया ए, यहाँ से क्या आ गया बी, यहाँ से आ गया आपके पास आ गया ए
और यहाँ से आगे आ गया सी। तो ये आपके पास यहाँ पे तो आपको चेक करना पड़ेगा CABAC, ए ऑप्शन में ही बन रहा है। तो लीजिए ये ही आपका क्या है बेटा आंसर है। होपफुली बात ये भी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, देखिए आपके पास क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक एट द टाइम 4:10, 4:10 की अगर बात हुई है। जब भी बेटा एंगल की बात होती है तो फॉर्मूला याद रखेंगे, एंगल इज इक्वल टू 11/2 इंटू में मिनट और माइनस में 30 इंटू में आर। आप लोग इसको डायरेक्ट याद कर रखेंगे। तो सबसे पहले 11/2 में मिनट कितने हैं आपके पास 10 और माइनस में 30 आर कितने हैं आपके पास 4। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 110/2, 110 को सीधा कर लेंगे 55 आ जाएगा और यहाँ पे 120 अगर सॉल्व करेंगे तो 650 नहीं आपके पास 65 डिग्री आपके पास एंगल आएगा। ये आप लोग काट दीजिएगा, ये टाइपिंग एरर है, यहाँ पे 65 डिग्री लिखा हुआ है, ये 65 डिग्री है, यहाँ पे ये 35 डिग्री था और ये 125 डिग्री था और ये 60 डिग्री था। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा 65 डिग्री। तो ये डिग्रीज में आपके पास यहाँ पे लिख रखा है, तो आंसर इज ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके पास फिर से लेटर सीरीज का है। इस क्वेश्चन में बात करता हूँ ACE का नंबर है 135। एक्चुअल में भी इसका नंबर यही होता है DFG। इसका नंबर D का वैल्यू होता है 4, 6 और 7। तो सी ऑप्शन सीधा सीधा आंसर यहाँ पे बन रहा था, इसमें कुछ भी आप लोगों को नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से है। इस क्वेश्चन में देखते हैं, सबसे पहले है पॉइंटिंग टू अ वुमेन इन अ फोटोग्राफ अ मैन से। तो स्पीकर आपको मिल गया मैन बोलता है, क्या बोलता है शी किसको रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे इस वुमेन को। शी इज द मदर इन लॉ, मतलब ये जो वुमेन है वो मदर इन लॉ है, सास है, ऑफ द वाइफ ऑफ द फादर ऑफ माई ओनली सन, मतलब माई ओनली सन, मेरा इकलौता बेटा, माई ओनली सन। ठीक है, माई ओनली सन। द आपके पास ओनली सन के बाद है आपके पास द फादर द वाइफ, इसकी वाइफ आपके पास और इसकी मदर इन लॉ। इसकी मदर इन लॉ कैसे बनेगी, जब आपके पास यहाँ पे इस मैन की ये क्या होगी, वाइफ होगी। तो ये कौन है, वुमेन है और किसकी तरफ इशारा किया है, फोटोग्राफ की तरफ। अब आगे पूछा क्या है आप लोगों से, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू अ पर्सन। तो ये वुमेन जो है इस पर्सन की क्या लगती है, ये जो वुमेन है इस पर्सन की क्या लगती है, तो क्या लगती है, मदर। तो मदर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन में नहीं है, तो ये तीनों चारों कैंसिल। आंसर इज ई ऑप्शन, नन ऑफ दिस। आंसर इज डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस। होपफुली बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन अ रो ऑफ बॉयज मोहन इज 20th फ्रॉम द लेफ्ट। एक रो थी जिसमें आपके पास 2 बच्चे हैं, मोहन की वैल्यू जो है लेफ्ट एंड से कितनी दे रखी है यहाँ पे 20th फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, आगे है एंड 12th फ्रॉम द राइट एंड, और इसी की वैल्यू आपके पास 12 कहां से दे रखी है, राइट एंड से। आगे क्या है, प्रताप इज 15th फ्रॉम द राइट, प्रताप जो है 15 है राइट एंड से। देन हाउ मैनी बॉयज आर देयर बिटवीन द मोहन एंड प्रताप। अच्छा बेटा यहाँ पे देखो, ये आपके पास वैल्यू जो है वो लेफ्ट हैंड से है और ये वैल्यू जो है राइट हैंड से है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं बेटा। अगर ये 15 पे है और ये 12 पे है तो ऑब्वियस 2 ही बच्चे होंगे, एक होगा 13वां बच्चा, एक होगा 14वां बच्चा, तभी तो ये 15 हुआ। अगर ये 12 पे है तो ये 13, 14 और ये 15, तो इन दोनों के बीच में कितने बच्चे बैठे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चे बैठे हैं। इन दोनों के बीच में कितने बच्चे बैठे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चे बैठे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, आपके पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए, इन अ ग्रुप ऑफ 6 चिल्ड्रन TKVOMNW। ठीक है, T इज फैटर देन M। T जो है फैटर है किससे, M से, बट नॉट एज फैट एज W, पर उतना नहीं है जितना कि W, तो मतलब W ऊपर आएगा। K इज नॉट फैटेस्ट, K सबसे ऊपर नहीं आएगा, ये इसको मार्क कर लीजिए। K इज नॉट फैटेस्ट नोर
इज W, ना तो K ऊपर आएगा ना ही W ऊपर आएगा, ठीक है। वेयर V इज थिनेस्ट, V जो है थिनेस्ट है, तो आपके पास हु इज फैटेस्ट अमंग देम ऑल, तो W आ नहीं सकता, V आ नहीं सकता, तो एक ही बंदा बचा है वो है O। तो 1 2 3 4 5 6 6 बंदे पूरे भी हो गए, तो सबसे फैटेस्ट कौन आ गया आपके पास? O, ठीक है। ये V आ नहीं सकता था, W आ नहीं सकता था, और सबसे नीचे V था, तो बचा बंदा जो था वो था O। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये अगला क्वेश्चन है आपके पास, एक सर्कल में है जिसमें आपके पास वेन डायग्राम की बात हुई है। 3 क्लासेस हैं, पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेड बाय 3 फिगर, ट्रायंगल रिप्रेजेंट स्कूल टीचर एंड द स्क्वायर रिप्रेजेंट मैरिड पर्सन एंड द सर्कल रिप्रेजेंट लिविंग जॉइंट फैमिली, ठीक है। देन आगे आपके पास यहाँ पे क्या है? स्कूल टीचर, ये मतलब इसकी बात हो रहा है स्कूल टीचर हु आर मैरिड पर्सन बट नॉट जॉइंट फैमिली, मतलब ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो बाकी आप लोगों को यहाँ पे चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे देखें इन दोनों का, स्कूल टीचर और मैरिड पर्सन का जो कॉमन पर्सन है, मैरिड टीचर मैरिड पर्सन आपके पास आ गए, तो और स्कूल टीचर, तो इनका कॉमन पर्सन जो है C आ रहा है, तो A ऑप्शन आंसर आ गया, ठीक है। C आ रहा है तो वो A आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट आपके पास अगला क्वेश्चन फिर से वही है, बट आर द नंबर दैट लाई इनसाइड एनी टू फिगर। एनी टू फिगर में तो सबसे पहले एक तो आ रहा है 5 यहाँ पे, जो कि सर्कल और ट्रायंगल में है। अगला है आपके पास, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 1, जो कि आपके पास ट्रायंगल और इसमें है तो 1। तो अगर मैं बात करता हूँ B ऑप्शन जो है आपका आंसर बन गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, तो इक्वेशन है 5 प्लस का मीनिंग है -8 और माइनस का मीनिंग है मल्टीप्लाई, और 25 वैसे आ जाएगा, और मल्टीप्लाई का मीनिंग है डिवाइड, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे 5 और डिवाइड का मीनिंग है +40। चलो जी, तो सबसे पहले इसे डिवाइड कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 5 इंटू में 8 -5 +40। तो यहाँ पे अगर मैं सोल्व करता हूँ, 8 इंटू 5 कितना आ गया? 40 +40 और -5, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 5। सो ए ऑप्शन बेटा आपके पास डायरेक्ट यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन क्या है? डायरेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है? एन egg vendor calls on his first customer and sell half his egg and half an egg। मतलब उसने, किसी बंदे ने एक कस्टमर को फोन करके बुलाया, और उसमें से जैसे मान लीजिए 100 उसके पास वैल्यूज थी, तो 100 में से 50 दे दी, और 50 तो दी, पर उसका भी आधा उसने वहां पे उसको दे दिया, ठीक है। एंड टू द सेकंड कस्टमर ही सेल हाफ ऑफ व्हाट ही वाज लेफ्ट विद एंड हाफ ऑफ एन एग, मतलब उसी तरीके से उसने आगे किया। एंड द थर्ड कस्टमर को भी उसने वैसे ही यहाँ पे दिया। देन आगे है आपके पास, हाउएवर ही डिड गेट नॉट एनी ब्रेक, उसने कोई ब्रेक भी नहीं लिया। इफ इन द एंड ऑफ द वेंडर was left 3 egg, how many egg did he have initially। अब बोला कि इस तरीके से बांटता गया, वो सबसे आखिर में उसके पास सिर्फ 3 ही एग बचे। तो स्टार्टिंग में कितने थे? तो ये बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले देखिए, इसमें मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले जब उसने अपना जो सारे एग दिए होंगे, मतलब आफ्टर सेलिंग 3 एग टू अ 3 पर्सन, तो ही लेफ्ट विद 3। तो उसके पास जो है, इसे देखिए कुछ ऐसे लिखेंगे, आफ्टर सेलिंग, ठीक है, हम सेल करते हैं टू 3 पर्सन, तो वो उसमें, ठीक है, 3 पर्सन को दे दिए, तो उसके पास कितने एग बचे थे? 3 एग, इज इक्वल टू 3 एग लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो सेम उसने यही आफ्टर सेलिंग टू 2 बंदों को अगर दिया होगा, तो कितने उसके पास बचे होंगे? ये 3 तो बचे ही होंगे, इनटू में 2 प्लस में 1, तो कितने हैं आपके पास यहाँ पे? 7, ठीक है, 7 आपके पास बच जाएंगे 2 को देने के बाद। फिर उसके बाद उसने सेम काम किया होगा आफ्टर सेलिंग टू 2 को बाद 1 में, तो 1 में अगर उसने दिया है तो कितने बचे हैं आपके पास? आपके पास 7 इंटू में 2 प्लस ऑफ 1, तो इज इक्वल टू 15 उसके पास बचे होंगे।
तो सबसे पहले जब उसने दिया था, अब इस तो सारे आ गए, अब उसके पास हमें ये बताना है कि सबसे पहले कितने होंगे। तो 15 इंटू में 2 प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 31। बस सिंपल, आपके पास 31 है जब उसके पास थे, इनिशियली थे, तब उसने इसको से सभी को बांटा था, तो आपके पास 3 उसके पास बचे होंगे। सिंपल, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 of the following 4 are alike in certain way and so from the group which is the one of that does not belong to the group। इनमें से कौन सा इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है? गुरुद्वारा, मॉस्क, चर्च एंड मोनेस्ट्री। अगर बात करता हूं तो ये तीनों के तीनों क्या हैं? वर्कशिप प्लेस हैं, तो ये जो है आपके पास नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे मोनेस्ट्री जो है सीधा ही आंसर निकल रहा है। अब आप यहाँ पे इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। दीपक स्टार्ट वॉकिंग स्ट्रेट टूवर्ड ईस्ट, एक लाइन थी जहां से वो ईस्ट की तरफ जाता है और कितना जाता है? 75 मीटर। देन ही टर्न हिज लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर, अब यहाँ से 25 मीटर जाता है, ठीक है। देन ही टर्न लेफ्ट अगेन एंड वॉक 40 मीटर, यहाँ से जाता है 40 मीटर, ठीक है। देन आगे स्ट्रेट अगेन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 25 मीटर फिर से वो आता है। हाउ फार ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अब स्टार्टिंग पॉइंट से दूरी पूछी है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 40 है, तो यहाँ पे बच कितनी गई? 35 बच गई। तो 35 की अगर बात करो ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? डी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस, ठीक है। चलो जी, तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके वीकली मॉक टेस्ट का क्वांट के पार्ट का सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? द एलसीएम ऑफ 3 एंड 0.09। देखो, जब भी अगर ऐसे कुछ नंबर का एलसीएम कैलकुलेट करना हो, सबसे पहले इनको क्या लिखो? फ्रैक्शन में लिख लो। इसको लिख सकते हैं 3/1 और इसको आप लिख सकते हो 9/100, ठीक है। अब क्या करो, जो आपके पास न्यूमरेटर की वैल्यूज हैं उनका एलसीएम कैलकुलेट कर लो। 9 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 9। और जो डिनोमिनेटर की वैल्यूज हैं उनका हम कैलकुलेट करते हैं एचसीएफ। 1 और 100 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 9/1, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 1 year ago, the ratio between समीर एंड अशोक एज वॉज 4:3। कि एक साल पहले समीर और अशोक की एज का जो रेशियो है वो 4:3 है। 1 year hence, the ratio of their ages will be 5:4। 5:4। What is the sum of their percentage? तो उनकी परसेंट एज का सम क्या होगा? देखो, ये एक साल पहले और फिर एक साल बाद की बात कर रहा है, तो ये कितना बड़ा? 3 से 4 और ये 4 से 5, मतलब दोनों साइड डिफरेंस क्या है? सेम है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो ये 1 का इंक्रीज हुआ है, ये 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? आपकी 2 होगी। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 और 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। उसने पूछा था व्हाट इज द सम ऑफ देयर परसेंटेज। देखो ये 1 year ago है, तो आज के दिन ये क्या हो जाएगा? +1 9 और ये +1 7। तो उसने पूछा 9 + 7 का सम क्या होगा? 9 + 7 का सम क्या होगा? आपका 16 होगा। आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन सबको, ठीक है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ए एंड बी स्टार्ट ए जॉइंट फर्म। ए इन्वेस्ट was thrice the investment of B and the period of his investment was 2 times the period of investment of B. If B got 4,000 as profit, then profit of A। अब A और B दोनों लोगों ने बिजनेस शुरू किया, ठीक है। इन दो लोगों ने बिजनेस शुरू किया। वो क्या कह रहे हैं कि A ने जो पैसा लगाया था वो 3 टाइम्स लगाया था, कि अगर इसने 3 रुपए लगाए हैं तो बी ने 1 रुपया लगाया होगा, उसने 3 गुना बोला है, ठीक है। उसके बाद और जो टाइम है वो उसने बोला था 2 टाइम्स, कि जो टाइम है वो कितना है? डबल है, कि बी का टाइम 1 है
तो ये डबल होगा। मतलब ये किस रेशियो में, 6:1 के रेशियो में इन्होंने टोटल जो भी प्रॉफिट होगा वो किस रेशियो में होगा, 6:1 में होगा। अब बी का प्रॉफिट मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 4000 गिवन है, तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 इंटू 4000 मतलब 24,000। कितना, 24,000। उसने पूछा क्या था, देन द टोटल प्रॉफिट 24 प्लस 4 28,000। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, द एवरेज लेंथ ऑफ 4 figures of my left hand is 600 millimeter, then average length of the 5 fingers of my left hand। ठीक है, देखो 4 का दे रखा है, 5 का तो कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा कि डाटा ही हमारे पास कंप्लीट नहीं है तो 5 का हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, A merchant sold his goods for 75 rupees at a profit percent equal to CP. The CP was कि उसको जो प्रॉफिट परसेंटेज और जो सीपी है ना वो इक्वल है। ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ ऑप्शन से देखो। देखो अगर मैं 40 की बात करूं तो 40 के ऊपर 35 का मुझे प्रॉफिट हुआ तो क्या प्रॉफिट 35% होगा, नहीं होगा। देखो 50 के ऊपर अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट कितना, 25, और 25 को 50 के ऊपर कैलकुलेट करो तो 50% ही क्या आ रहा है आपका, प्रॉफिट भी आ रहा है। तो यही तो उसने क्वेश्चन में बोला था, यही क्वेश्चन में बोला था कि जो प्रॉफिट परसेंट है और जो सीपी है वो दोनों क्या है, इक्वल। तो ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बी एंड सी टुगेदर अर्न 150 रुपीज पर डे, while A and C together earn 94 rupees, B and C earn 76, the daily earning of C। देखो आपके पास सबसे पहले A, B और C इनका टोटल पैसा गिवन है 150 रुपए के, तीनों मिलकर 150 रुपए कमा रहे हैं एक दिन में। ठीक है, उसके बाद आपके पास A प्लस C का गिवन है कि ये 94 रुपीज अर्न कर रहे हैं। अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लूं तो A कैंसिल और C कैंसिल, बचा कौन हमारे पास, B। तो 150 में से 94 माइनस करोगे तो 56 रुपीज आ गया कि B की अर्निंग क्या है, 56 रुपीज है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास गिवन है कि B प्लस C कितना अर्न कर रहे हैं, 76, और B का आपके पास गिवन है कितना, 56, तो C का ही तो कैलकुलेट करना था। तो C का अमाउंट क्या होगा, 20 रुपीज, जो कि आपका ऑप्शन डी है। आई होप क्लियर होगा सब बच्चों को ये। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, ए ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग ट्रेवल्स एट 70 किलोमीटर पर आवर। ए मैन इज रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन इन विच द ट्रेन इज गोइंग। ट्रेन की लेंथ हमारे पास है, स्पीड हमारे पास है, पर्सन की स्पीड हमारे पास है। पूछा क्या है, द ट्रेन विल पास द मैन, तो कितने टाइम में क्रॉस करेगी। अब कोई ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस करती है तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल होता है, इक्वल टू द लेंथ ऑफ ट्रेन जो कि 100 मीटर है। सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है आपकी, माइनस होती है, और डिस्टेंस क्या होता है आपका, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। तो 60 की स्पीड से इंटू 5/18, क्योंकि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, इंटू टाइम। ठीक है, अगर यहां से इसको सोल्व करें तो ये 0 से 0 कैंसिल होगा। ठीक है, ये इसको 2 पे डिवाइड करेगा और 6 इसको 3 पे डिवाइड करेगा। तो टाइम कितना आ गया हमारे पास, 2 इंटू 3, 6 सेकेंड। कितना, 6 सेकेंड। मतलब ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां उसने क्या बोला है, देखो, द कॉस्ट ऑफ कारपेंटिंग ए रूम इज 120 रुपीज, कि 120 रुपए कॉस्ट है अगर उसको कारपेट रूम में लगाया गया। इफ द विड्थ हैड 4 मीटर लेस, द कॉस्ट ऑफ कारपेट वुड हैव बीन 20 रुपीज लेस। तो उसकी वजह से जो कारपेट की कॉस्ट है वो 20 रुपीज क्या हो जाती है, हमारी लेस हो जाती है। द विड्थ ऑफ द रूम इज, तो हमें रूम की विड्थ कैलकुलेट करनी है, उसकी विड्थ कितनी होगी। देखो अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, उसने क्या बोला है
कि 120 रुपीज कि उस पूरे फ्लोर में अगर हम कारपेट लगाते हैं तो उसका खर्चा हमारे पास कितना है, 120 रुपए है। ठीक है, और सबसे मेन चीज अगर हम यहां बात करें, जो ये 120 रुपीज आया है, ये बना कहां होगा, पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से खर्चा आया होगा। ठीक है, तो इसी को अगर हम एरिया कंसिडर करें कि कितना होगा, 120 स्क्वायर मीटर, कितना, 120 स्क्वायर मीटर के एक स्क्वायर मीटर में लगाने का जो खर्च है वो कितना है, 1 रुपया है। तो 120 रुपए कब लगेंगे, जब वो कितना एरिया कवर करेगा, 120 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर करने वाला है। ठीक है, और रूम है हमारे पास और इसका एरिया क्या होता है आपका, L इंटू बी होता है। तो L इंटू बी की वैल्यू आपके पास क्या है, 120 हो गई। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, अगर विड्थ को 4 लेस कर दे। ठीक है, मतलब अगर पहले आपने बी लिया है तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, L इंटू बी माइनस 4, और इसकी वजह से वो कह रहा है कि 20 रुपए कम लगते हैं। तो हम यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं, अब एरिया क्या हो जाएगा आपका, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 100 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास यहां से देखो 2 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन बन रही है। अगर मैं फर्स्ट केस में L की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो L की वैल्यू 120 डिवाइड बाई बी होगी, और यहां से L की वैल्यू क्या होगी, 100 डिवाइड बाय बी माइनस 4 होगी, और B की वैल्यू ही वो हमसे कैलकुलेट करवाना चाह रहा था। ठीक है, अब देखो 20 से डिवाइड किया 5 और ये 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 6b माइनस 24 इज इक्वल टू 5b, और यहां से अब b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24, जो कि आपका ऑप्शन ए है। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में मेन चीज थी कि आप जो ये 120 रुपीज और ये 100 रुपीज, जो 20 रुपीज लेस दिया है, इसको कैसे यूज कर रहे हो, इसको हम एरिया की तरह यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हुज डायगोनल इज, देखो क्यूब का अगर हम डायगोनल की बात करें, डायगोनल क्या होता है, अंडर रूट 3 इंटू साइड, और वो किसके इक्वल दिया है, 2.5 सेंटीमीटर के। तो यहां से अगर साइड कैलकुलेट करें क्यूब की तो 2.5 डिवाइड बाय रूट 3 होगा। 2.5 डिवाइड बाय रूट 3, ये हमने क्यूब की साइड कैलकुलेट कर ली। पूछा क्या था, वॉल्यूम, और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, मतलब साइड का क्यूब। तो 2.5 डिवाइड बाय रूट 3 का होल क्यूब करना है। ठीक है, इसका होल क्यूब होगा 2.5। अब देखो मैं इसको क्या लिख रहा हूं, 25 डिवाइड बाय 10 इंटू 25 डिवाइड बाय 10 इंटू 25 डिवाइड बाय 10, क्योंकि पॉइंट को हटा के हमने क्या कर दिया, डिवाइड बाय 10 कर दिया, और क्यूब है तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई में भी। और अब बात करते हैं रूट 3 की, तो इसका क्यूब करेंगे तो ये क्या बनेगा, 3 रूट 3 बनेगा आपका। कितना बनेगा, 3 रूट 3 बनेगा। ठीक है, अब देखो इस 25 से डिवाइड करेंगे तो इस 100 को 4 पे डिवाइड करेगा, 5 से डिवाइड करेंगे 5 और 2 आ गया, तो ये 125 डिवाइड बाय 24 इंटू रूट 3, 4 इंटू 8, 8 इंटू 3, 24 रूट 3। देखो अब ऐसा कोई ऑप्शन तो नहीं है, बट 125, अब देखो क्या अगर बात करें 125 3 ऑप्शनों में है वैसे तो मेरे पास, तो किस में क्या बन सकता है, बी तो बनेगा नहीं। ठीक है, डिवाइड में 8 तो आ नहीं सकता क्योंकि 24 तो ऑलरेडी बड़ा है हमारे पास। रूट 3 कहीं भी नहीं है बेस में, अगर मैं इसको ऊपर भी रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, 125 रूट 3। अब देखो ऑप्शन ए से मैच हो रहा है, और रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 24 इंटू 3 क्या होता है, 72। तो ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन में देखो ये चीज अगर ध्यान से देखें तो जो डायरेक्ट आपका आंसर आ रहा था वो ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा था, हमें रूट 3 को बेस से खत्म करना था, इसलिए हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1/3, 1/4 एंड 1/5। रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो 3 इंटू 4 इंटू 5 इनका एलसीएम लेते हैं, 3 से 3 कैंसिल, 4 इंटू 5 20,
4 से 4 कैंसिल, 3 इंटू 5 15 और ये 12। तो साइड्स का रेशियो क्या आ रहा है 20, 15 और 12। सबको अगर मैं ऐड करूं तो 20 प्लस 15 प्लस 12 कितना बना 47 यूनिट, जो कि 94 के इक्वल है। तो कितना है 2 टाइम्स। उसने पूछा था स्मॉलेस्ट साइड, तो स्मॉलेस्ट साइड आपकी 12 यूनिट है, तो 12 इंटू 2 करो 24। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। A train covers a distance in 50 minutes if it runs at a speed of 48 किलोमीटर पर आवर। अगर वो 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो वही डिस्टेंस उसका 50 मिनट में कवर होता है। डिवाइड बाय 60 करके आवर्स में चेंज कर लिया। द स्पीड एट विच द ट्रेन मस्ट रन टू रिड्यूस द टाइम ऑफ द जर्नी टू 40 मिनट। तो कह रहा है कि अगर यही डिस्टेंस उसको 40 मिनट में कवर करना हो तो उसकी स्पीड क्या होगी। ठीक है, अगर इस पार्ट को अगर हम सोल्व करें, देखो 60 से 60 वैसे कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल, 4 इस 48 को 12 पे डिवाइड करता है, 12 इंटू 5 60। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 6000 अमाउंट्स टू 7986 इन 3 years। द रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखो प्रिंसिपल कितना है आपके पास 6000 है, ठीक है, अमाउंट कितना है आपके पास 7986। सबसे पहले इनका रेशियो बनाते हैं। ठीक है, अगर मैं रेशियो बनाने की बात करूं तो किससे डिवाइड होंगे, और टाइम 3 ईयर है, टाइम 3 ईयर है तो ये क्या होंगे, परफेक्ट क्यूब भी बनना चाहिए रेशियो इनका। तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए मुझे सबसे पहले तो 6 पे डिवाइड होता नजर आ रहा है, ये 1000 आ गया। इसको डिवाइड करेंगे पहले 1 पे, फिर 3 पे, फिर 3 पे, फिर 1 पे। ये किसका क्यूब 10 का, ये किसका क्यूब 11 का। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या होगा 10:11। तो 1 रुपए का इंटरेस्ट मिला कितने के ऊपर 10 के ऊपर इंटू 100। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था आपका 10% था। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 10%। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 8000, इट इंक्रीज बाय 10% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड 20% ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years। 8000 के ऊपर सबसे पहले 10% इंक्रीज हुआ तो हम कह सकते हैं कि ये 110% होगा, इनटू फिर 20% इंक्रीज हुआ तो ये 120 हो जाएगा, फिर डिवाइड बाय 100। तो इसको सॉल्व करें, ये 20 से 20 कैंसिल, और ये 20 से ये 20 कैंसिल। ठीक है, 12 इंटू 8 कितना होता है आपका 960। 960 को मल्टीप्लाई करना 11 से, 11 का प्रोडक्ट आपको बता रखा है, लास्ट में 0 एज इट इज छोड़ो। उसके बाद 6, 9 प्लस 6 15, कैरी 1, 9 प्लस 1 10, 10,560। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, 11 का प्रोडक्ट आपको बता रखे कि कोई भी नंबर हो अगर उसको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे होगा। उसके बाद वो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, आई मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ टी कॉस्टिंग 18 रुपीज पर केजी एंड 25 रुपीज पर केजी। कि 2 अलग अलग क्वांटिटीज ली हैं, एक की कीमत कितनी है 18 रुपए किलोग्राम, और दूसरे वाले की कीमत कितनी है 25 रुपए प्रति किलोग्राम। इन ए सर्टेन रेशियो आई सेल द मिक्सचर एट 30.80 डिवाइड बाय 100 कर देते हैं, पॉइंट को रिमूव करके, मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 40%। मतलब ये जो वैल्यू है ये मेरी 140 की वैल्यू है और मुझे तो सीपी कैलकुलेट करना है, मतलब 100। 0 से 0 कैंसिल, 14 से डिवाइड करो, पहले 2 पे डिवाइड करेगा और फिर 2 पे डिवाइड करेगा। तो मतलब जो मिक्सचर था उसकी कॉस्ट क्या थी 22 थी। लगा दो अब एलिगेशन, 25 में से 22 गया 3, 22 में से 18 गया 4, तो 3:4। 3:4 ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भजन सिंह परचेज्ड 120 ream ऑफ पेपर एट 80 रुपीज पर ream। ही स्पेंड 280 ऑन द ट्रांसपोर्ट एट द रेट ऑफ 40 पैसा पर ream एंड 72 रुपीज टू द कोली। ठीक है, सबसे पहले तो अगर बात करें उसने टोटल देखो कितना पैसा खर्च किया, 120 रिम खरीदे हैं उसने 80 रुपए के हिसाब से, तो 9600 रुपीज तो उसने यही खर्च किए हैं, 9600 रुपए तो उसने यही खर्च किए हैं। ठीक है,
उसके बाद उसने, ठीक है, 280 रुपए उसने ट्रांसपोर्ट के दिए, 40 पैसा, ठीक है, 40 पैसा इसको डिवाइड बाय 100 कर लो तो आपका आ जाएगा उसने कितना पे किया था कूली के लिए, ठीक है, कितना, और टोटल रिम कितने थे हमारे पास 120। तो हम कह सकते हैं कि 12 इंटू 4 48 रुपीज उसने यहां खर्च किए थे और 72 रुपीज उसने यहां कूली को भी दिए। तो इन सबको ऐड करें, 8 + 2 10 कैरी 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 + 4 12 19 + 1 20 फिर से कैरी 1 हो जाएगा, 2 + 1 3, ठीक है। उसने आपके 2 कैरी होगा ना, सॉरी, ठीक है, 400 रुपए यहां खर्च किए। तो अगर हम बात करें यहां से उसने टोटल 10,000 रुपए में ये सारा सामान उसके घर पहुंचा है, 10,000 रुपए में ये सारा सामान उसके घर पहुंच गया, टोटल उसका खर्चा आ गया, मतलब उसका सीपी बन गया। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर वो चाहता है कि उसको 8% का क्या हो, प्रॉफिट हो। देखो, जो भी प्रॉफिट लेगा इसके ऊपर लेगा, इसका 8%, इसका 8% कितना होगा, इसका 1% कितना है, 100 है, तो 8% कितना होगा, 800। तो हम कह सकते हैं कि 10,800 रुपए में वो सेल करेगा 120 रिम। 0 से 0 कैंसिल, 12 से डिवाइड करो, 12 इंटू 9 क्या होता है, 12 गुना 9 कितना होता है, 108। तो मतलब 90 रुपए का एक रिम वो सेल करेगा। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लास्ट क्वेश्चन था हमारा। आई होप सभी क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होंगे। अगर कोई भी डाउट कंफ्यूजन रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन। वेलकम टू ज्ञानम। तो स्टूडेंट्स, ये जो वीकली मॉक टेस्ट होता है तो इसमें आज हम टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंग्लिश सेक्शन, राइट। तो इंग्लिश के कुछ जो क्वेश्चंस आते हैं पंजाब के एग्जाम्स में उनको हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में, राइट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो डायरेक्शन सबसे पहले एग्जाम में पढ़नी होती है। बोला इन ईच ऑफ द सेंटेंसेस गिवन बिलो वर्ड इन प्रिंट इज प्रिंटेड इन बोल्ड। बिलो द सेंटेंसेस 4 choices आर गिवन, पिक अप द वन विच इज मोस्ट नियरली द सेम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेम इन मीनिंग मतलब सिमिलर वर्ड आपको देना है, ठीक है। डायरेक्शन पढ़ के ध्यान रखना है कि आपको सिमिलर वर्ड पूछा गया है या ऑपोजिट वर्ड पूछा गया है, अकॉर्डिंगली आपने आंसर देना होता है। तो सेम इन मीनिंग पूछ रहा है एज द वर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड एंड कैन रिप्लेस इट विदाउट ऑल्टरिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो स्टेटमेंट बोल रहा है अ डिक्लेरेशन इन हर एक्टिंग करियर फ्रॉम लीडिंग रोल्स टू कैमियोज इवेंचुअली, राइट। तो डिक्लेरेशन का मीनिंग आपको देना है यहाँ पे। तो क्या इसका जो मीनिंग जाएगा वो रिकवरी जाएगा, असेंट जाएगा या डिसेंट जाएगा, स्ट्रोक जाएगा। तो ये नेगेटिव वर्ड्स है एक्चुअली, ठीक है। तो ये नहीं आएंगे। इसका जो राइट आंसर बनेगा डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन हम बोल सकते हैं कि जो उसका डिसेंट जो करियर है, ठीक है, इन हर एक्टिंग करियर फ्रॉम लीडिंग रोल्स टू कैमियोज इवेंचुअली। तो वो अंत में जाके जो है उसको बेसिकली कैमियोज की तरफ मूव करने में उसने हेल्प करी, ठीक है। डिसेंट जो उसका एक्टिंग स्टाइल है, एक्टिंग जो उसका करियर है। सेकंड देखते हैं, शी हैज एन इनसैटिएबल लव फॉर म्यूजिक, राइट। तो इनसैटिएबल लव होता है कि जो चीज ना कभी मतलब पूरी नहीं हो पाती, जिसके लिए मतलब आप स्ट्राइव करते हो, ठीक है, जो अनक्वेंचेबल हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लेना, यहाँ पे भी सेम इन मीनिंग बोल रहा है, ठीक है। तो शी हैज एन इनसैटिएबल लव फॉर म्यूजिक, मतलब उसका जो लव है म्यूजिक के लिए, जो लव है वो अनक्वेंचेबल है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा है, हम बोल सकते हैं एक्सट्रीम लेवल का है, ठीक है। अनक्वेंचेबल मींस हम बोल सकते हैं एक्सट्रीम लेवल, राइट। अ पेपर, अभी यहाँ पे बोल रहा है देयर आर 4 choices given below each of the following sentences out of those choices choose the one that best describes the given sentence। मतलब वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ये पंजाब के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अ पेपर रिटन इन वंस ओन हैंडराइटिंग, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बेसिकली मैन्युस्क्रिप्ट, राइट। तो अपनी हैंडराइटिंग में लिखना दैट इज कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट, राइट। तो राइट आंसर बनेगा इसका मैन्युस्क्रिप्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये भी काफी बार पूछा जाता है स्टूडेंट्स। वन हु ट्रैवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब अ प्लैन्ड जर्नी भी बोलते हैं इसको। अ जर्नी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस या अ प्लैन्ड जर्नी इज कॉल्ड व्हाट, राइट। तो इसके लिए जो राइट आंसर है मेंडिकेंट, तो बैगर को बोलते हैं, ठीक है। ये तो एक बैगर के लिए वो इसका मीनिंग तो बैगर होता है, भिखारी होता है। पॉपर को बोला जाता है, तो ये तो नहीं होगा। हमारा क्वेश्चन तो जर्नी से रिलेटेड है, तो राइट आंसर है इसका आइटिनरेंट। इट्स आइटिनरी,
इसको ITINERARY भी बोल देते हैं, आइटिनररी भी बोल सकते हो आप, या आप इसको आइटिनरेंट भी बोल सकते हो, राइट। कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब यहां पे find out the part which has an error in the following sentences. If there is no error, your answer is fourth. मतलब जो फोर्थ पार्ट है वो हमारा नो एरर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको एक बार रीड करें, क्या हो सकता है। बोले द फाइनेंस मिनिस्टर बोस्ट्स ऑफ इंप्रूविंग। अब ये जो बोस्ट्स ऑफ होता है इसका मीनिंग होता है सेल्फ प्रेज करना, ठीक है। बोस्टर, ही इज अ बोस्टर मीन्स जो अपनी ही बारे में ही बात करता है, ठीक है। शेखी झाड़ता है, ठीक है, शेखी मारता है, और इसके बाद जेरेंड लगता है। तो बोस्ट ऑफ इंप्रूविंग तो ठीक लिख रहा है। द इकोनॉमिक, यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे स्पेस होना चाहिए, कंडीशन अलग है, इकोनॉमिक अलग है। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्रीज। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये जो एपोस्ट्रोफी एस लगा रहा है, क्या इसको लगाने की जरूरत है। देखो एपोस्ट्रोफी एस जो ये नाउन का कॉन्सेप्ट होता है, इसको नाउन केसेस बोलते हैं। तो एपोस्ट्रोफी एस तो हम तब लगाते हैं जब आगे आप किसी चीज पे पोजेशन शो कर रहे हो। तो बोला ऑफ द कंट्रीज, तो कंट्रीज क्या, तो ऑफ द कंट्री आएगा यहाँ पे, नो नीड टू यूज योर एपोस्ट्रोफी एस। तो आंसर बनेगा इसका हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड मतलब इसका आंसर है हमारा D1। राइट आंसर बनेगा इसका D। क्लियर, क्योंकि कंट्रीज लिख रहा है तो कंट्रीज लिखने की यहां पे जरूरत नहीं बनेगी हमारी, ठीक है। कंट्रीज नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। थर्ड मतलब ये है डी में आ रहा है हमारा थर्ड। तो ये ध्यान रखना, थोड़ा ए में सेकंड पार्ट है, बी में फोर्थ पार्ट है, सी में फर्स्ट पार्ट है और डी में थर्ड है। कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड, ऑडियंस ए पार्ट में है तो ए हमारा सी में ले रहा है, आर रिक्वेस्टेड 2 में है तो ए में 2 ले रहा है, टू बी इन इट्स सीट्स, ठीक है, टू बी इन इट्स सीट्स थर्ड पार्ट ले रहा है हमारा डी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑडियंस आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ये जो ऑडियंस ਹੁੰਦਾ स्टूडेंट्स, ऑडियंस ये कुछ ना कलेक्टिव नाउन ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ठीक है। ਜਿੱਦਾਂ ऑडियंस है, कमेटी है, ज्यूरी है, ये ना यूनिटी ਨੂੰ भी ਦੱਸਦੇ ਹੈ, एकता ਨੂੰ भी ਦੱਸਦੇ हैं, यूनिटी ਨੂੰ भी ਦੱਸਦੇ हैं, तो ये सैपरेशन ਨੂੰ भी ਦੱਸਦੇ हैं। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ऑडियंस है मतलब ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ प्लूरल कंसीडर किया होना, तां इत्थे आर लगांदा पिया। हुण सीट्स दे उत्ते ऑडियंस जब बैठूगी तो अड अड करके बैठूगी ना। तो दो कॉन्टैक्सट हुंदे आ कलैक्टिव नाउन दे। जे तुसीं देखना पैना कि क्या डिवाइडिंग च गल कर रहा, सैपरेशन च गल करदा पिया वाक्य च। जे डिवाइडिंग या सैपरेशन च गल हो रही है तो उत्थे इन्हां नूं आपां प्लूरल वर्ब ही उत्थे लगांदे हैं। तो इत्थे ऑडियंस नूं तुसीं मतलब दे मन रहे हो, दे मन रहे हो मतलब प्लूरल मनदे पए हो, तां ही तुसीं इत्थे आर पाया है, मतलब इन्होंने आर दिता है, राइट। द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी, लेकिन इधर जो केस है वो गलत पा रहा है इत्थे, ठीक है। दे द ऑब्जेक्ट हुंदा स्टूडेंट्स देम, ते दे दा जेड़ा पोजेसिव केस हुंदा वो हुंदा देयर, राइट। हुण ये इट मन के इत्थे इट्स कर रहा तो ये गलत है, इत्थे आऊगा देयर। आंसर है साडा थर्ड, थर्ड है साडा डी च, तो आंसर है डी, राइट। सो द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन देयर सीट्स, इदा बनूगा ये। Next, he told me that he wrote a letter to his superior for a certain reason। इत्थे भी माड़ा जी स्पेस आऊगा, ठीक है। for तो बाद आर्टिकल ए अड है, ध्यान रखियो। कहंदा he told me, told तो तुहानू एकदम क्लिक होना चाहिए, नरेशन दा सेंटेंस है, इनडायरेक्ट स्पीच दा वाक्य है। he told me that he wrote a letter। हुण नरेशन च की हुंदा कि जेड़ा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुंदा है उन्होंने मोड़ना पैंदा है जी पास्ट परफेक्ट च। तो इत्थे he wrote a letter दी थां ते आना चाहिए he had written, he had written a letter, right। तो राइट आंसर सेकंड है, सेकंड है मतलब ए। इदा पहला जो आंसर बनेगा सेकंड पार्ट साडा ए ऑप्शन च दिंदा पिया, तो ए ऑप्शन इत्थे राइट आंसर बनेगा। तो ये 3 एरर सीगे। हुण आगे देखिए, आई होप ये आ गया ਤੁਹਾਡਾ। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइंड बिलो आर गिवन अल्टरनेटिव्स टू द अंडरलाइंड पार्ट 1 2 and 3 which may improve the sentence। choose the correct alternative in case no improvement is needed। your answer is fourth। कहता आई होप आई एम गोइंग टू गेट फीवर सून। अब इस बात की ना ये आई एम गोइंग टू गेट फीवर सून कि मैनू इदा लगता है कि मैनू मतलब फीवर होने वाला है, तो ये कोई होप नहीं करते आप इस गल की ना, ठीक है। इदा सानू की होना चाहिए, आई फील अफ्रेड या आई डाउट इफ या नो इंप्रूवमेंट। तो आंसर होना चाहिए इदा ए फियर, ठीक है। मान लो नेगेटिव थॉट है आगे ना, क्योंकि मैनू मतलब फीवर आने होने वाला है जिदा, तो इदा सानू थोड़ा जे एहसास होंदा, इदा थोड़ा फियर होंदा है, ठीक है। इस गल दा आपां होप नहीं करते,
ਹੋਪ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਫੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ। ਕਮ ਟੂ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਨੈਕਸਟ, ਦ EMPLOYEES वर kept in the dark about the, ये जड़ा इत्थे मुहावरा है kept in the dark है, about the latest developments। idiomatic है, choose the correct alternative, right? improve करना है सेंटेंस, तो क्या थे, मतलब kept in the dark थे, were informed after office hours, क्या उनको ऑफिस आवर्स के बाद उन्होंने दस्या गया सी, ठीक है, कि भाई लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई है, या वर इन्फॉर्म्ड व्हेन इट वाज टू लेट, या बहुत लेट हो गया सी उस टाइम उन्होंने दस्या, वर गिवन सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, उन्होंने कोई सीक्रेट जानकारी दी गई, या वर नॉट इन्फॉर्म्ड एट ऑल। तो आंसर होना चाहिए डी, ठीक है। कहता कैप्ट इन द डार्क, कैप्ट इन द डार्क वही ਹੁੰਦਾ है कि ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ कि उन्हीं मैनू नेरे च रखा, उसने मुझे अंधेरे में रखा, अंधेरे में रखा मतलब उसने बताया नहीं, तो कैप्ट इन द डार्क द राइट आंसर जाएगा, वर नॉट इन्फॉर्म्ड एट ऑल, बिल्कुल भी उन्होंने दसे नहीं गया, ताही फिर वो कहता पिया। हुण ये आ गया साडा जंबलिंग का क्वेश्चन, वधिया क्वेश्चन है जी, कई बार ये पेपरां च पूछा जाता है, ये मैं क्वेश्चन कई बार देखा है, ठीक है। तो तुसी इदा की बना सकते हो, ठीक है, राइट आंसर इदा की बनेगा, कहता द टूरिस्ट रिसोर्ट्स अरेंज करना है, PQRS नेम्ड, कहता ये आपस मतलब अरेंज करने पैने, आगे पीछे लिखे हैं द टूरिस्ट रिसोर्ट्स, ठीक है। द टूरिस्ट रिसोर्ट्स, ये स्टार्टिंग तो इत्थे दिती है ते एंडिंग भी इत्थे दे रहा इन द कंट्री, द टूरिस्ट रिसोर्ट्स, ठीक है। तो सब तो पहले इत्थे P आऊगा, S आऊगा, P आऊगा या Q आऊगा, तो देखो Q आपां देखिए, द टूरिस्ट रिसोर्ट्स हैव बिकम, Q तो बनदा नहीं है जी, D नूं तो काटा मार दो, ठीक है। फिर हुण आपां S नूं देख लिए, द टूरिस्ट रिसोर्ट्स ऑफ द गढ़वाल हिमालयाज, गढ़वाल हिमालयाज, ये थोड़ा बोलने च सही लगता है, बट द टूरिस्ट रिसोर्ट्स इन उत्तर प्रदेश, ये आऊगा पहले, ठीक है। तो इसकी स्टार्टिंग होएगी P तो, या तो A जाऊगा या तो C जाऊगा, हुण P तो बाद S आऊगा या P तो बाद Q आऊगा। द टूरिस्ट रिसोर्ट्स इन उत्तर प्रदेश ऑफ द गढ़वाल हिमालयाज, ऑफ द गढ़वाल हिमालयाज, तो इन उत्तर प्रदेश ऑफ द गढ़वाल हिमालयाज आऊगा, तो P तो बाद S आऊगा, मतलब आंसर साडा इत्थे C है, ये नहीं होएगा, ठीक है। इत्थे तुसी एक अनब्रेकेबल पेयर नूं जरूर देखिया करो, अनब्रेकेबल पेयर इदां दा हुंदा है, मतलब जिहड़ा टुੱਟਦਾ नहीं है, जिन्हों कदे आपां ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। द टूरिस्ट रिजॉर्ट्स इन उत्तर प्रदेश ऑफ द गढ़वाल हिमालयाज क्यू हैव बिकम आर द टोस्ट ऑफ विंटर स्पोर्ट लवर्स इन द कंट्री, राइट, ये बनेगा, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये मैंने देखा है पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट तुसी देखो, कहते कारपेंट्री इज अ वेरी स्ट्रेन्यूअस प्रोफेशन, स्ट्रेन्यूअस होता है मतलब जो थकाने वाला है, ठीक है, ये साडी ओपनिंग है। फिर उसके बाद 6th च कहता देयर लाइफ्स दस आर फुल ऑफ चैलेंजेस, मतलब ਜਿਹੜੇ कारपेंटर ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਚੈਲੰਜ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਟਰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ कारपेंट्री इज अ वेरी स्ट्रेन्यूअस प्रोफेशन। फिर इस तो बाद की हो सकता है, व्हाट कुड बी द राइट आंसर, की बन सकता है इस तो बाद, कारपेंट्री इज अ वेरी स्ट्रेन्यूअस प्रोफेशन बिकॉज ऑफ सच टूल्स दे पुट नहीं, कोई रेफरेंस नहीं है, इन सच एरियाज इट इज, कौन से एरियाज, किसकी बात कर रहा है, इंडिपेंडेंट नहीं है। समटाइम्स देयर वर्क डिमांड्स, वर्क की बात कर रहा है। कारपेंटर्स हैव टू वर्क विद शार्प टूल्स, पहले तो हम उनका रेफरेंस देंगे ना, कारपेंटर्स का रेफरेंस देंगे, हैव टू वर्क विद शार्प टूल्स, राइट। तो एस तो स्टार्ट हो गया, ये तो बात गल कंफर्म हो रही है थे, तो मतलब पी वाला बी ऑप्शन कटे गया, ठीक है, आर वाली ऑप्शन कटे गई, एस तो दो ही ऑप्शन स्टार्ट होंगी, एस ते एस, ए ते डी। हुण आपां देखना एस तो बाद पी रखा जाऊगा यार क्यू आऊगा। कारपेंटर्स हैव टू वर्क विद शार्प टूल्स, पी बिकॉज ऑफ सच टूल्स दे पुट देमसेल्व्स एट रिस्क ऑफ इंजरी, या क्यू इन सच एरियाज इट इज ऑल टू इजी टू फॉल और स्लिप, ठीक है। कारपेंटर्स हैव टू वर्क विद शार्प टूल्स इन सच एरियाज इट इज, तो एस तो बाद हुण क्यू बनता है स्टूडेंट्स, या मतलब पी आएगा, वो आपको देखना पड़ेगा। तो एस के बाद ना ये क्यू वाली ऑप्शन नहीं आएगी क्योंकि ये गलत बनता पाया, इतने बनेगा ए। कारपेंटर्स हैव टू वर्क विद शार्प टूल्स बिकॉज ऑफ सच टूल्स, क्योंकि टूल्स का रेफरेंस यहाँ पे दे रहा है, ठीक है, इसके साथ जो कनेक्शन बन रहा है वो यहाँ बन रहा है। मतलब माड़ा माड़ा तुसी लिंक लभना हुंदा है जंबलिंग च, किहड़ी स्टेटमेंट दा कोई वर्ड किसी दूजे वाक्य नाल कनेक्ट हुंदा है, लिंक हुंदा है, तो वही आंसर साडा बनेगा। पूरा आपां पढ़ लिया, कारपेंट्री इज अ वेरी स्ट्रेन्यूअस प्रोफेशन, कारपेंटर्स हैव टू वर्क विद शार्प टूल्स, फिर पी बिकॉज ऑफ सच टूल्स दे पुट देमसेल्व्स एट रिस्क ऑफ इंजरी, आर
फिर समटाइम्स देयर वर्क डिमांड्स क्लाइंबिंग ऑन हाई राइज बिल्डिंग्स, भाई उत्ते भी उन्होंने चढ़ना पैंदा कई बार, क्यों? बिकॉज ऑफ सच इन सच एरियाज इट इज ऑल टू ईजी टू फॉल और स्लिप। मतलब जब वो ऊंचाई ते चढ़ते हैं तो उत्थे कई बार उन्होंने पैर स्लिप भी हो सकता है, तो गिर भी सकते हैं और डिग भी सकते हैं। तो देयर लाइव्स दस आर फुल ऑफ चैलेंजेस। इस करके फिर कहता है कि उन्होंने जिहड़ी जिंदगी है वो चैलेंजेस भरी है। तो आंसर ए है जिथे। अगला देखियो, सीता इज नॉट कट आउट, ये एक्चुअली फ्रेज ये है, कट आउट आ जाता है पेपर च, कट आउट एक फ्रेजल वर्ब है, ध्यान रखना। सीता इज नॉट कट आउट फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क। कट आउट कट आउट द मीनिंग द स्टूडेंट्स, कोई भी बंदा किसी काम लई सही है या सही नहीं है। जैसे मैं बोलता हूँ राम इज नॉट कट आउट फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क, मतलब वो बढ़िया नहीं, बंदा नहीं है, ठीक है, सही नहीं है, सुटेबल। राइट आंसर करें इसका बी। नेक्स्ट, शी वॉज इन अ ब्राउन स्टडी, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। ब्राउन स्टडी कई बार पंजाब के पेपर पूछी जा चुकी है फ्रेजल वर्ब। ब्राउन स्टडी का मतलब होंगे जब तुसी बैठे हो तो तुसी सोची जा रहे हो, या तो तुसी इन्ने स्ट्रेस चो, तुसी इन्ने डिप्रैशन चो, कई बार आप इन्ने डिप्रैशन च होंगे हैं कि आप टेंशन च होंगे, सोची जा रहे हैं, बस सानू पता ही नहीं लगता कि साडे आसे पासे की हो गया। उस स्टेट नू ब्राउन स्टडी कहते हैं। एक फ्रेजल वर्ब है, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है, इहदा मतलब मीनिंग होंदा डीप इन थॉट, डीप इन थॉट। गहरी सोच च होना, राइट। तो ड्रीम नहीं होंदा, ड्रीम तो रात नू आंदे हैं। राइट आंसर इहदा रैबरी है। रैबरी का मतलब भी गहरी सोच ही होंदा है, जिदा आप म्यूजिंग ओवर कहते हैं, म्यूज ऑन भी वही होंदा है, चिंतन करना, सोचना, विचार करना। बट ये ब्राउन स्टडी एक्चुअली है कि जब आप टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, सोची जा रहे हो, ठीक है, थिंक डीपली, थॉट में हो आप, और आपको पता नहीं लग रहा आपके आसपास क्या हो रहा है, तब इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट, तो पूरा गिवन बिलो अ फ्यू वर्ड्स प्रिंटेड इन बोर्ड, अंडर सच ईच वर्ड देयर आर 4 चॉइसेस। अब आपको यहां पे देना है ऑपोजिट वर्ड, ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ऑपोजिट देना है, तो ऑपोजिट के लिए आपको यहां पे देखना पड़ेगा, ऊपर जो वर्ड दे रहा है उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि उसका मीनिंग पहले आपको आना चाहिए। जो मीनिंग आएगा ताही तुसी आंसर दे सकते हो, ठीक है। इंसिपिड, ये है, थोड़े इकट्ठा लिख दिया, थोड़ा नीचे लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं। इंसिपिड का जो राइट आंसर बनेगा, इसका जो मीनिंग होगा, ठीक है, वो होगा ऑपोजिट इसका, लाइवली। नेक्स्ट, नरेशन, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक कंप्लीट रेस्ट। अब डॉक्टर तो क्या करेगा, डॉक्टर तो एडवाइस ही देगा ना। द डॉक्टर टोल्ड, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक कंप्लीट रेस्ट, द डॉक्टर सजेस्टेड द पेशेंट टू टेक कंप्लीट रेस्ट, या द डॉक्टर आस्क्ड वाली ऑप्शन तो नहीं आएगी, टोल्ड वाली भी नहीं आएगी, सजेस्टेड वाली भी नहीं आएगी। सिंपल आएगा आंसर हमारा बी। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक कंप्लीट रेस्ट। डॉक्टर एडवाइज ही करता है जी, सुझाव ही देता है, ठीक है। अब उसको मानना नहीं मानना वो पेशेंट की मर्जी होती है। तो राइट आंसर इसका बनेगा बी। तो यही था इस सेशन में, ठीक है। तो बाकी हम नेक्स्ट मॉक टेस्ट में फिर दोबारा मिलेंगे इसी डिस्कशन के साथ। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।